अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा इस वीडियो का टॉपिक एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1, साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। यूज द फॉर्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा minus cos alpha sin beta. Now sin 15 degree will be equal to sin alpha, that is 45 degree, cos beta, which is 30 degree, minus cos alpha 45 degree and sin beta, which is 30 degree. Put the values of sin 45 degree 1 over square root 2 and the value of cos 30 is square root 3 over 2, value of cos 45 and value of sin 30 1 over 2. Multiplying, we get 2 square root 2 minus 1 over 2 square root 2. Taking the LCM, 2 square root 2 square root 3 minus 1, sin 15 degree. Now move to second part, which is cos 15 degree. Cos 15 also can be written as 45 degree minus 30 degree. Now apply the formula of cos alpha minus beta, that is cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. Then cos 15 degree will be equal to cos 45 cos 30 plus sin 45 and sin 30. Cos 45 is equal to 1 over square root 2, cos 30 is equal to square root 3 over 2, plus sin 45 1 over square root 2 and sin 30 1 over 2. Square root 3 over 2 square root 2 plus 1 over 2 square root 2. Taking LCM, we get 2 square root 2 and in the numerator it will be the same as above because the denominators of both the fractions are same. Move to part number 3, which is tan 15 degree. Tan 15 degree can be written as tan 45 minus 30 degree. Now applying the formula of tan alpha minus beta to the right hand side, which is tan alpha minus tan beta over 1 plus tan alpha tan beta. Then tan 15 degree will be equal to tan 45 minus tan 30 over 1 plus tan 45 into tan 30. Tan 45 equal to 1 and tan 30 is equal to 1 over square root 3. Tan 45 again 1, tan 30 again 1 over square root 3. Main division line, taking the LCM in the numerator, we get square root 3 minus 1, and also taking the LCM in the denominator, we get square root 3 plus 1. Now square root 3 will be cancelled and the remaining will be the answer, square root 3 minus 1 over square root 3 plus 1. This is the value of tan 15 degree. Part number 4, sin 105. Now sin 105 degree can be written as sin 60 plus 45 degree. Applying the formula sin alpha minus alpha plus beta,
that is sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Then sin 105 degree will be equal to sin 60, which is the value of alpha, and 45 will be the value of beta. Cos 45 plus cos 60 and sin 45. Now put the values of sin 60, which is square root 3 over 2, and the value of cos 45 1 over square root 2 cos 60, 1 over 2 sin 45, 1 over square root 2. Multiply both fractions we get, and now multiply these two fractions. Fractions are adding with each other, so taking LCM. Denominators are same, so numerators will also be same, and this is the value of sin 105. Part number 5, cos 105 degree can be written as cos 60 degree plus 45 degree. Now using the formula of cos alpha plus beta, which is cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. Then cos 105 degree becomes cos 60 cos 45 minus sin 60 sin 45. Value of cos 60 is 1 over 2, value of cos 45 1 over square root 2, value of sin 60 square root 3 over 2, value of sin 45 1 over square root 2. Multiplying these two fractions we get this, and multiplying these two fractions we get square root 3 over 2 square root 2. Taking the LCM, denominators are same, therefore numerators will also be same, and this is the value of 105 degree. Now next part number 6, tan 105 degree. Tan 105 degree can be written as tan 60 plus 45 degree using the formula of tan alpha plus beta, which is tan alpha plus tan beta over 1 minus tan alpha tan beta. Applying this formula, we get tan 105 degree equal to tan 60 plus tan 45. Divide by 1 minus tan 60 tan 45. Tan 60 is equal to square root 3, tan 45 equal to 1, tan 60 square root 3, tan 45 equal to 1. Then we get square root 3 plus 1 over 1 minus square root 3, which is the value of tan 105 degree. Move to question number 2. Question number 2 says prove that, and the statement in part number 1 is sin 45 degree plus alpha is equal to 1 over square root 2 and sin alpha plus cos alpha in the bracket. Take its left hand side, which is sin 45 plus alpha. Now applying the formula, that is sin alpha plus beta equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. We get sin 45 degree cos alpha plus cos 45 degree and sin alpha. Putting the value of sin 45, cos alpha will be as it is, value of cos 45, sin alpha will be as it is. Now we can take 1 over square root 2 common, and the remaining will be in the bracket, which is the right hand side. So part number 1 proved. Now the second part is cos alpha plus 45 degree
is equal to 1 over square root 2 cos alpha minus sin alpha. Take its left hand side, cos alpha plus 45 degree. Now using the formula which is cos alpha plus beta equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. Then left hand side will be equal to cos alpha cos 45 degree minus sin alpha and sin 45 degree. Cos alpha will be as it is because we don't have the value of alpha. Cos 45 equal to 1 over square root 2. Sin alpha again will be as it is, sin 45 is equal to 1 over square root 2. Taking 1 over square root 2 common, we get the right hand side. Hence proved. फर्स्ट पार्ट है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, टेक की लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद अगला स्टेप क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये फॉर्मूला है। इसी तरह tan अल्फा माइनस बीटा पे लगाना है फॉर्मूला, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा और tan बीटा, अल्फा 45 है, बीटा a है। फॉर्मूला अप्लाई हो गया। इसके बाद tan 45 की वैल्यू लगा लें आप, 1 होती है। नीचे भी tan 45 की वैल्यू लगा लें, वो भी 1 होती है। यहाँ फिर tan 45 की वैल्यू 1 लगा लें, नीचे भी tan 45 की वैल्यू 1 लगा लें, तो ये आ गया। इसमें हमने एक ही चीज़ यूज़ की है, tan 45 इज इक्वल टू 1। ऊपर जो दो फॉर्मूले लगाए हैं उसको मेरा ख्याल है याद हो चुके होंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एलसीएम तो टेक नहीं होता। फिर क्या होगा, फिर ये 1 माइनस टैन और ये 1 माइनस टैन, एंगल सेम, सारा कुछ सेम, कैंसिल। इसी तरह ये 1 प्लस टैन और ये 1 प्लस टैन, ये भी आपस में कैंसिल, इक्वल टू 1। यही राइट हैंड साइड है, ये प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट है, इसमें भी सेम फॉर्मूले जो भी पिछले पार्ट में लगाए हैं, लेफ्ट हैंड साइड आप टेक करें। फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा यहाँ पे tan अल्फा माइनस बीटा का। tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा प्लस tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, तो ये होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये दो फॉर्मूलाज अप्लाई कर लिए हैं। यहाँ पर वैल्यूज यूज होंगी, tan पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, आंसर आता है 1। दूसरा होता है यहाँ पे tan 3 पाई बाई 4 लिखा हुआ है, 3 पाई बाई 4 ये कितना बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तकरीबन 180 प्लस 45 ही बनता है, तो 225 आ जाता है। इसका भी आंसर जो है वो -1 आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बनता है ये 180 माइनस 45 डिग्री। क्योंकि 3 पाई बाई 4, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ आपको डायरेक्टली कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पाई माइनस पाई बाई 4, एलसीएम लेके 3 पाई बाई 4 ही बनता है, तो पाई माइनस पाई बाई 4 है, एलाइड एंगल यूज करें, tan पाई बाई 4 बाकी बचेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव tan पाई बाई 4, आंसर आ जाएगा -1। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको -1 लिखा है। आप डायरेक्ट लिख लें, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे लगा लेते हैं। tan पाई बाई 4 1 है, माइनस tan थीटा है 1 प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 है, tan थीटा एज tan 3 पाई बाई 4 -1 है, ये लगा ली वैल्यू। इसी तरह ये भी -1 लगा ली, तो ये प्लस हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस और ये -1, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, आप एलसीएम टेक कर लेंगे, 1 प्लस टेन थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर भी आप एज इट इज ही लिख देंगे, 1 माइनस टेन माइनस 1 प्लस टेन, तो 0/1 प्लस टेन आ रहा है। तो क्या 0 ओवर नॉन ज़ीरो नंबर अगर लिखा हो तो उसका आंसर 0 आ सकता है, क्योंकि ये सारा कैंसिल हो गया है। तो 0 ओवर एनी नॉन ज़ीरो नंबर इज इक्वल टू 0, यही राइट हैंड साइड है। Part number 3, question number 3. Sin theta plus pi by 6 plus cos theta plus pi by 3 is equal to cos theta. Take its left hand side, sin theta plus pi by 6 plus cos theta plus pi by 3. Apply the formula sin alpha plus beta. First we will write the formula. Sin alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta, and this formula of cos alpha plus beta, cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. Then left hand side will be equal to sin theta cos pi by 6 plus cos pi by 6 cos theta sin pi by 6 plus cos theta cos pi by 3 minus sin theta sin pi by 3. sin थीटा तो ऐसे ही रहेगा, cos pi by 6 की वैल्यू यानी cos 30, क्योंकि पाई 180 है तो 180 over 630, cos 30 की वैल्यू square root 3 over 2 plus cos theta as it is, sin pi by 6 यानी sin 30 की वैल्यू plus cos theta as it is, cos pi by 3 यानी 180 by 3 cos 60 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू sin square root 3 over 2, open these brackets, sin theta multiply by square root 3 over 2, cos theta multiply by 1 over 2, cos theta multiply by 1 over 2, and minus sin theta multiply by square root 3 over 2, plus and minus, these two terms will be cancelled, and now take cos theta common. From these two terms we get 1 by 2 plus 1 by 2. Take the LCM in the bracket, 1 plus 1, so it will be 2 by 2 cos theta, that is only cos theta, which is right hand side. इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक करें पार्ट नंबर 4 की। लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है और टेन थीटा बाय 2 है। टेन को आप साइन ओवर कॉस लिख लें, साइन ओवर कॉस। जब साइन ओवर कॉस करना है तो उसके एंगल भी साइन कॉस के डिफरेंट नहीं, सेपरेटली लिखने हैं, होगा सेम। टेन थीटा है, ये भी आप एंगल सेम लिखेंगे थीटा बाय 2 और साइन ओवर कॉस लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस हो रहा है, जहां पे माइनस हो रहा है वहां एलसीएम आ जाता है, या प्लस हो रहा है वहां पे भी एलसीएम आ जाता है। जहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहां एलसीएम नहीं आता, इसलिए कॉस और साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कॉस थीटा बाय 2 इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जो एलसीएम आएगा वो कॉस थीटा बाय 2 आएगा। इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसलिए कॉस थीटा बाय 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2 माइनस
इसका एलसीएम इसके नंबर के साथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ सेम है तो ये कैंसिल होगा। इसके जो ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ वही आप लिखेंगे, यहाँ पे ये लिख दिया साइन थीटा बाय 2। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आएगा कॉस थीटा बाय 2। इसका डिनोमिनेटर 1 है तो कॉस थीटा बाय 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2 प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले सिर्फ आ जाएंगे साइन थीटा और साइन थीटा बाय 2। मेन डिवीजन लाइन के सामने इक्वल का निशान होना चाहिए, ये 2 3 इक्वल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब जो ऊपर बाकी बच गया है ये भी कोई फॉर्मूला बनता है। ये कौन सा फॉर्मूला बनता है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। कौन सा फॉर्मूला बनता है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इससे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो होती है साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, यहां पे फॉर्मूला जो बना है वो ये है, लिख देता हूं मैं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो बनाते हैं फॉर्मूले की, यहाँ अब राइट हैंड साइड बन रही है तो वो क्या बनेगा? साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये फॉर्मूला न्यूमरेटर के लिए यूज किया है। जो डिनोमिनेटर है वहां पे भी आप गौर करेंगे तो वो भी एक फॉर्मूला बना रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला क्या है? इसमें दोनों कॉस सेपरेट हैं, दोनों साइन सेपरेट हैं, तो ये फॉर्मूला है कॉस का और कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये बन जाएगा फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन ओवर कॉस है, साइन ओवर कॉस एंगल सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं tan सेम एंगल के साथ। अब जो सेम एंगल है उसमें एलसीएम ले लें आप, एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा? tan 2 थीटा माइनस थीटा, तो थीटा बाय 2। यही राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 5, 1 माइनस tan थीटा tan फाई ओवर 1 प्लस tan थीटा tan फाई। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी आप टेक करें। लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस tan है तो 1 माइनस tan है, tan को आप साइन ओवर कॉस, जैसे पिछले पार्ट में हमने किया है उसी तरह से 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। tan फाई है तो साइन फाई ओवर कॉस फाई हो जाएगा। साइन ओवर कॉस ही होता है tan, लेकिन जो एंगल है वो फिर दोनों के साथ सेम एंगल लिखा जाता है जो भी tan का था। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इसी तरह ये बनेगा साइन फाई ओवर कॉस फाई। ऊपर नीचे एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में दोनों में आप एलसीएम बनाएं। एलसीएम यही है क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, प्लस माइनस नहीं है तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम कंसिडर होगा। ये एलसीएम आ गया न्यूमरेटर में। 1 है तो डिनोमिनेटर भी इसका 1 है तो ये कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा और कॉस फाई माइनस डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम के साथ तो ऊपर वाला आ जाएगा न्यूमरेटर एज इट इज। नीचे भी आप इसी तरह से एलसीएम टेक करेंगे, कॉस थीटा कॉस फाई, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह जैसे ऊपर अभी किया। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा सारा प्लस, और ये है यहाँ पे न्यूमरेटर आ जाएगा। जो इनके डिनोमिनेटर हैं कॉस थीटा कॉस फाई कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। ये फॉर्मूला बनता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। क्या फॉर्मूला बनता है ये? कॉस थीटा प्लस फाई कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा यही होता है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और नीचे वाला फॉर्मूला कौन सा बनता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये बनता है कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यही राइट हैंड साइड है।
सामने लिखा है कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को हमने इसके इक्वल शो करना है और फिर उसके इक्वल भी शो करना है जो तीसरी जगह पर लिखा हुआ है। इसको आप टेक करें, कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा, इसके जो फॉर्मूलाज हैं जो लास्ट हमने पढ़े भी हैं एक्सरसाइज में, उसके डिडक्शंस भी हमने किए हैं, प्रूफ भी किए हैं फॉर्मूलों के, तो ये वो फॉर्मूले यहाँ आप अप्लाई करेंगे। कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला है कॉज अल्फा प्लस बीटा का। सेकंड ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखेंगे कॉज अल्फा माइनस बीटा का, ये होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं दोनों, इसमें आप देखें तो ये वाली टर्म पहली और इसकी पहली सेम है, इसकी दूसरी और उसकी दूसरी भी सेम है, तो इसलिए इस पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं कॉज अल्फा कॉज बीटा, ये होल स्क्वायर होगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये सारा a है और ये सारा b है, तो सारे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर्स को अलहदा कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, इसी तरह ये साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा, अलहदा अलहदा स्क्वायर्स, क्योंकि प्रोडक्ट है तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती। अब यहां तक सेम है। अब हम यहां से ये वाली साइड भी बना सकते हैं और दूसरी जो साइड है उसको भी यहीं से बना सकते हैं। यहां तक दोनों के लिए आप सेम काम कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन अलहदा से आए आपको कि इसे बनाएं, यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि सिर्फ उसे बनाना है, तो यहां तक दोनों के लिए सेम होता है। अब इसमें अगर हम इस चीज को बनाना चाह रहे हैं तो इसमें कॉस के साथ अल्फा है यहां पर कॉस के साथ अल्फा है, इसे आप लिखा रहने दें। आगे कॉस के साथ बीटा है, जबकि वहां साइन के साथ बीटा है, तो फिर हम इसे कन्वर्ट करेंगे कॉस को साइन में, क्योंकि कॉस का बीटा नहीं चाहिए, हमें साइन का बीटा रिक्वायर्ड है। तो इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। 9.2 में हमने इस फॉर्मूले का प्रूफ भी किया था, आइडेंटिटीज का प्रूफ जहां पे लिखा हुआ है, तो ये वो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला, वो लगाया। साइन अल्फा के साथ है, जबकि हमें कॉस चाहिए अल्फा के साथ, तो इसे भी आप उसी फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाले से, तो बनेगा साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज, क्योंकि बीटा साइन का चाहिए था हमें, इसको लिखा रहने दें। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस, इनको भी मल्टीप्लाई करें, साइन स्क्वायर बीटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इनको ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें इसकी सेकंड और फोर्थ टर्म एक जैसी है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। पहली और तीसरी टर्म इसकी बाकी बच गई है, इसको आप लिख दें एज इट इज, यही रिक्वायर्ड था, ये हो गया रिक्वायर्ड। अब अगर ये पूरा क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ जाता है तो फिर आप इसी से आगे स्टार्ट करेंगे, बजाय इसके कि आप दोबारा इस सारे को लिखें, यहां तक प्रोसीजर करें और फिर ये सारा करें, उसकी बजाय आपने इधर से ही आगे इसको टेक करना है। आप यहां लिखेंगे टेक, एक साइड को आप टेक कर लें जो भी हमने प्रूव की है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, इसको आप टेक कर लें। इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा है, हमें चाहिए कॉस बीटा के साथ, और अल्फा के साथ साइन चाहिए, इसलिए कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम वही फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दें कॉस स्क्वायर की जगह पर। साइन बीटा के साथ है, हमें कॉस चाहिए बीटा के साथ, इस वजह से हमने यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिखना है। ब्रैकेट्स आप ओपन करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, इसके साइन बदल जाएंगे कॉस स्क्वायर बीटा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। जो बच गया है उसमें से पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लें, नेगेटिव टर्म को आप बाद में लिख लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का प्रूव हो गया, कंप्लीट हो गया। सामने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड इसकी टेक करते हैं और इसकी राइट हैंड साइड बनानी है। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद
अगले स्टेप में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगाएंगे। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इसके प्रूफ भी हमने किए हुए हैं, उससे वीडियो बनी हुई है। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये लिख दिया फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसका है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फॉर्मूला दोनों लिख दिए। नीचे लिखेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फॉर्मूला हमने लिखा है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। ये फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसी में सारी डिडक्शंस की हुई हैं हमने इसी की वीडियो में। तो ये है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ब्रैकेट्स ओपन कर लें अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आप ब्रैकेट्स ओपन कर लें। ब्रैकेट्स ना भी लगाते अगर इस स्टेप में तो ये भी कोई मसला नहीं था, सिर्फ इसलिए मैंने लगाई थी ताकि शो हो सके कि हमने फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक लगाया है। इसकी सेकंड और फोर्थ टर्म कैंसिल हो रही है, प्लस माइनस की है। सेकंड फोर्थ नीचे से भी कैंसिल हो रही है आपस में। जो बाकी ऊपर बच गई फर्स्ट और थर्ड टर्म एक जैसी है, दोनों ऐड हो जाएंगी। ये और ये भी एक जैसी हैं, ये भी ऐड हो जाएंगी। 2 कैंसिल हो रहा है, कॉस बीटा कैंसिल हो रहा है, बाकी जो बचता है उसे लिखते हैं साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। ये किसके इक्वल होता है? टेन अल्फ़ा के। यही राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन 6 पार्ट नंबर 1। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा साइन बीटा। टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 स्क्वायर, इसका हम बाहर लगा देते हैं। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, इसका भी स्क्वायर हम बाहर लगा देते हैं। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाली फॉर्म है ब्रैकेट के अंदर। लगाएं फॉर्मूला साइन अल्फ़ा कॉस बीटा बाई 2 और प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बाई 2। इसका जो स्क्वायर है ये बाहर एज इट इज़ आप रहने देंगे। इसके बाद ये भी इसी तरह साइन अल्फ़ा कॉस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बाई 2 और ये स्क्वायर इसका एज इट इज़। स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, या फिर अगर आप ये देखें एक और फॉर्मूला है a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है 4ab के इक्वल। अगर तो ये फार्मूला आपको याद है, मैट्रिक में आपने किया हुआ है, तो फिर तो आप इसे अप्लाई कर दें। अगर याद नहीं है तो अल्टरनेट इसका ये है कि आप इसके दोनों के स्क्वायर्स ओपन करें। ये a ये b, a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करें, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करें। ब्रैकेट्स के अंदर ही ओपन करना है क्योंकि ब्रैकेट के दरमियान में माइनस है। ओपन करने के बाद ब्रैकेट्स को ख़त्म करें, साइन बदलेंगे नेक्स्ट ब्रैकेट के इसके, और आपस में कटिंग होकर 4ab ही बाकी बचेगा। थोड़े स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगर फार्मूला याद कर लें तो दैट विल बी मच बेटर। तो ये a, ये भी a, ये b, इसका ये b दरमियान में a प्लस बी, a माइनस बी, बिल्कुल यही वाली फॉर्म है। तो आपने सिर्फ 4 लिखना है, a लिखना है और इसके साथ लिखना है b। ये a है सारा, b का मतलब इसमें सेकंड ब्रैकेट है, सेकंड टर्म, ठीक है। 4ab हमें राइट साइड बनानी है, साइन बीटा अलग और साइन 2 अल्फ़ा बनाना था साथ इसके, साइन बीटा और साइन 2
2 अल्फ़ा हमने बनाना है। तो इसमें आप ऐसा करें कि इसे आप लिख लें 4 को 2 और 2, ये ब्रैकेट्स में साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा आप इकट्ठा करें, कॉस बीटा बाई 2, जिसमें एंगल सेम है उनको आप इकट्ठा करना शुरू कर दें। कॉस से पहले आप साइन को लिख लें, साइन बीटा बाई 2 और कॉस बीटा बाई 2। ये हमने बीटा वाले सारे इकट्ठे कर लिए, उधर अल्फ़ा वाले इकट्ठे कर लिए। अब ये जो 2 है, एक 2 आप साइन अल्फ़ा वालों के साथ लिख दें जिसमें अल्फ़ा है एंगल, और दूसरा 2 आप लिख दें बीटा एंगल्स के साथ। ठीक है, ये दो चीज़ें आ गई। 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा इज़ द फार्मूला ऑफ साइन 2 अल्फ़ा। तो ये फार्मूला है पहली ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में भी यही फार्मूला है, साइन 2 और एंगल उसका, एंगल इसमें बीटा ओवर 2 है। फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ जो मैंने यूज़ किया है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज़ ऑलवेज इक्वल टू साइन 2 थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह अल्फ़ा था तो मैंने 2 अल्फ़ा लिखा है, यहाँ पर थीटा की जगह बीटा ओवर 2 है तो मैंने भी यहाँ बीटा ओवर 2 ही लिखा है, साइन 2 बीटा ओवर 2। बिल्कुल इसी तरह जैसे साइन 2 थीटा है, जो भी एंगल यहाँ होगा उसको डबल करके एक सिंगल साइन के एंगल में लिखना है, ये फॉर्मूला है। तो इसमें 2 कैंसिल हो गया, रह गया साइन 2 अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, यही इसकी राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1। इसका आंसर 1 लेके आना है। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी टेक करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ से अगली जो दो टर्म्स नज़र आ रही हैं उनमें कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन किया जा सकता है, तो इस टर्म के अंदर रह जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस सेकंड टर्म में जो उसके बाद लिखी हुई है इसमें रह जाएगा 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये मैंने कॉमन कर लिया है तो यहाँ 1 पावर थी वहाँ ये ख़त्म हो गया। इसके बाद ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, तो आगे प्लस कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा को आप ओपन कर लें, इसका जो फॉर्मूला है ओपन करें, ये होगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये जो बाहर कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की ब्रैकेट है इसका मैंने फॉर्मूला ओपन किया है, ये वाला। नेक्स्ट जो बड़ी ब्रैकेट है इसमें कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी ओपन कर लें, सेम वही जो हमने ब्रैकेट से बाहर ओपन किया, ये आ गया। और इसके आगे जो प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा पहले से लिखा हुआ है वो लिख दिया हमने, तो ये वाला पहले से लिखा हुआ था और जो बाकी है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा उसका मैंने ये सारा फार्मूला यहाँ से यहाँ तक लगाया है। इसी तरह इस कॉज का फार्मूला ये सारा यहाँ लगाया हुआ है। नेक्स्ट साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा इसी तरह लिखा रहेगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ब्रैकेट में था क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ। इसमें आप ये देखें कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक जैसी हैं, ये माइनस है वो +2 है, तो इन्हें आपस में सॉल्व करें, -1 + 2 ये बन जाएगा +1। तो पहले आप कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा लिखें और बाद में इन दोनों को सॉल्व करके ये बनता है प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, क्योंकि -1 साइन अल्फ़ा साइन बीटा और +2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, -1 + 2 से 1 साइन अल्फ़ा साइन बीटा बाकी बच गया। अब ये जो दो ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं आपको,
इन दोनों को तो पहले ऐसे लिख देना। अब जो दो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म है, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका बना दिया। यहाँ पे लगनी चाहिए थी होल ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगा के उसके ऊपर स्क्वायर लगना था। ब्रैकेट लगा के अगले स्टेप में वो स्क्वायर इन दोनों ब्रैकेट्स के साथ सेपरेटली लिखा जा सकता है, वो मैंने डायरेक्ट ही सेपरेटली उसको लिख दिया है। तो आप भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब इसमें आप ऐसा करें कि जो अल्फ़ा है उसे आप साइन के लिए और जो बीटा है उसे आप कॉस के लिए बना लें, ठीक है, ताकि ये डिफरेंट हो जाएं। अल्फ़ा और बीटा के साथ साइन या कॉस मिक्सिंग जो है ना उसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मिक्सिंग ख़त्म करनी है हमने। जहाँ पे कॉस अल्फ़ा है वो साइन में कन्वर्ट करें, जहाँ पे कॉस बीटा है या साइन बीटा है उसे कॉस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, ये जो भी साइन बीटा है इसको भी पहले आप सॉल्व कर लें, इसको भी आप कन्वर्ट कर लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो बीटा कॉस के साथ अल्फ़ा है ये वाला कॉस अल्फ़ा, इसे आप करें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसके साथ जो कॉस स्क्वायर बीटा इसे आप वैसे ही लिखा रहने दें। माइनस के बाद साइन स्क्वायर अल्फ़ा है ये लिखा रहने दें, क्योंकि अल्फ़ा के साथ मैंने आपको बताया कि साइन लिखना है आपने। और साइन स्क्वायर बीटा इसे आप लिख लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो सारे जो बीटा हैं वो कॉस के साथ हमने बना लिए। अगर साइन में था तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर लिया, अगर ऑलरेडी कॉस बीटा था तो उसको लिखा रहने दिया, उसको चेंज नहीं किया। और जो अल्फ़ा था साइन के साथ, अगर वो कॉस के साथ भी कहीं पे आ गया था जैसे यहाँ पे आया तो मैंने कॉस अल्फ़ा को साइन में कन्वर्ट किया, ठीक है। यहाँ पे साइन अल्फ़ा था एज़ इट इज़, तो ये साइन अल्फ़ा मैंने एज़ इट इज़ ही लिखा रहने दिया है। ये भी साइन अल्फ़ा एज़ इट इज़ लिखा रहने दिया है। उसके अलावा मैंने क्या किया है, उसके अलावा ये किया है कि साइन बीटा को मैंने कॉस में कन्वर्ट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर बीटा, इसको भी मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा कर दिया है। तो इस तरह करने से साइन के साथ अल्फ़ा और कॉस के साथ बीटा आ गया है। +1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, अब ये ब्रैकेट से बाहर है, ऐसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, अब ये भी साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में और ब्रैकेट ख़त्म कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब देखें इसमें कुछ कटिंग वगैरह होती है तो हम कर लेते हैं। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हैं कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बच गया 1, यही इसकी राइट हैंड साइड थी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 का जो फर्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस है यहाँ पे, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा डिवाइड बाय सीकेंट अल्फ़ा सीकेंट बीटा। राइट हैंड साइड टेक कर लेते हैं, 1 प्लस राइट हैंड साइड में टेन अल्फ़ा है, इसे मैं लिख लेता हूँ साइन ओवर कॉस। इसी तरह टेन बीटा है, इसे भी हम लिख लेते हैं साइन ओवर कॉस। एंगल वही रहेगा जो टेन का एंगल है, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लिखेंगे, बीटा है तो बीटा लिखेंगे। नीचे है सीकेंट, इसे लिखा रहने देते हैं सीकेंट अल्फ़ा सीकेंट बीटा। ये दोबारा से मेन डिवीज़न लाइन लिखी, इसके ऊपर हमने एलसीएम करना है। तो इसका जो एलसीएम आएगा न्यूमरेटर में वो होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमने एलसीएम कर लिया है। और डिनोमिनेटर में जो सीकेंट है इसे 1 ओवर कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं, और सीकेंट बीटा इसे भी 1 ओवर कॉस बीटा लिख सकते हैं। दोनों को इकट्ठा 1 ओवर कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, क्योंकि 1 ओवर करना था दोनों को, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाएगी सिंगल। ये कॉस अल्फ़ा कटेंगे, बीटा भी कट जाएंगे,
जो बाकी बच गया है वो लिखते हैं। बाकी बच गया है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये किसका फॉर्मूला है? इसको क्लोज करें तो फॉर्मूला है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का, और यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन की। सेकंड पार्ट में है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट अल्फ़ा टेन बीटा डिवाइड बाय कोसेकेंट अल्फ़ा सीकेंट बीटा। राइट हैंड साइड टेक की है। इसमें 1 प्लस कॉट अल्फ़ा है, कॉट का मतलब है ये कॉज ओवर साइन होगा, और टेन है तो ये साइन ओवर कॉज होगा। बीटा है उसके साथ एंगल, तो साइन कॉज का एंगल बीटा आएगा इस स्टेप में। कोसेकेंट है, इसको अभी इसी तरह रहने देते हैं, सीकेंट को भी। न्यूमरेटर में आप एलसीएम कर लें। जब एलसीएम करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा इसमें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। इसका नीचे 1 है, तो जब एलसीएम करेंगे तो जिसके नीचे 1 होता है उसके साथ जो एलसीएम वाली स्टेटमेंट होती है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होती है, प्लस इसके नीचे वही है जो एलसीएम है, तो इसका ऊपर वाला फिर एज इट इज़ ही आ जाएगा कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा। डिनोमिनेटर में कोसेकेंट है, इसे आप लिख सकते हैं 1 ओवर साइन अल्फ़ा, और जो सीकेंट है इसे लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस बीटा। कैंसिलेशन कर दें साइन अल्फ़ा, क्योंकि नीचे वही चीज़ है 1 ओवर की फॉर्म में है, ये आपस में कैंसिल ही होने हैं। जो बाकी बच गया है वो आप लिखें, वो है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो यही इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट साइड आप टेक कर लें। राइट साइड जब आप टेक कर लेंगे, लेफ्ट साइड को छोड़ दिया, राइट साइड को टेक किया, यहाँ लिखना है एक स्टेप में। अगले स्टेप में कॉट ओवर साइन कॉज को, कॉज ओवर साइन लिखना है कॉट को, तो आप लिख लें कॉज ओवर साइन इक्वल, यहाँ लगा लेते हैं जो मेन डिवीजन लाइन है उसके सामने, और इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। आगे लिखना है कॉज ओवर साइन कॉट बीटा के लिए, तो आप लिख लें कॉज बीटा ओवर साइन बीटा। ये मल्टीप्लाई हो रही हैं फ्रैक्शंस, तो सिंगल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन जब मल्टीप्लाई होती हैं तो न्यूमरेटर आपस में और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये +1 लिखा। इसके बाद ये कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा दोनों हैं, तो इसे लिखेंगे कॉज बीटा ओवर साइन बीटा, माइनस है कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। ये कॉट अल्फ़ा था, इसका भी अब एलसीएम करना पड़ेगा, ऊपर भी फ्रैक्शंस हैं नीचे भी फ्रैक्शंस हैं, तो आप एलसीएम करेंगे। पहले ये मेन डिवीजन लाइन लगा दी, इसका एलसीएम करना है हमने। इनका डिनोमिनेटर यही है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसे आप लिखें साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये एलसीएम हो गया। जो ऊपर लिखा हुआ है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, ये लिखा रहने देते हैं, और इसके बाद है प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, क्योंकि यहां से ये डिवाइड हो गया था 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर वाला एज इट इज, आगे प्लस लगाया। अब इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो ये सीधा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा लिखा जाएगा यहाँ पर। डिनोमिनेटर में भी आप एलसीएम टेक करें, इसका आप एलसीएम करने लगे हैं। दोनों नीचे वाली जो चीज़ें लिखी हुई हैं साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, इन दोनों को डिनोमिनेटर में लिखें, यही एलसीएम है। साइन बीटा इससे डिवाइड होगा तो साइन अल्फ़ा बचेगा, साइन अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा, माइनस साइन अल्फ़ा इससे डिवाइड हो जाएगा ख़त्म, और कोसाइन बीटा रह जाएगा, ऊपर लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई करके कॉस अल्फ़ा के साथ, ये बन जाएगा। अब इन दोनों का जो एलसीएम है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, वो आपस में कैंसिल हो रहा है, सेम है। जो बाकी बच गया इसको देख लेते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, तो आप इसकी जगह लिखेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये वाला किसका फॉर्मूला है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। तो कॉस ओवर साइन करने से क्या बनता है?
कॉट बनता है। एंगल सेम होना ज़रूरी है, एंगल सेम है अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसलिए कॉट का भी एंगल यही रहेगा अल्फ़ा माइनस बीटा। यही लेफ्ट हैंड साइड थी, यही प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड से कर लेते हैं, इसमें tan ज़्यादा लिखे हुए हैं तो साइन ओवर कॉज बनाकर एलसीएम के ज़रिए से हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद अगले स्टेप में, एक बार आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, अगले स्टेप में साइन ओवर कॉज लिख देंगे tan अल्फा को। तो अल्फा है तो साइन कॉज का एंगल भी अल्फा रहेगा, ये वाला प्लस, फिर tan है, फिर साइन ओवर कॉज है, ये साइन ओवर कॉज बीटा वाला आ जाएगा, फिर tan है, फिर साइन ओवर कॉज, तो ये भी साइन ओवर कॉज हो गया, अल्फा का ही रहेगा ना, माइनस साइन बीटा ओवर कॉज बीटा आएगा क्योंकि बीटा है। इसके बाद फिर एलसीएम, सारे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन में यही काम हो रहा है, tan को साइन ओवर कॉज लिखते हैं, कॉट है तो कॉज ओवर साइन लिखते हैं, एलसीएम कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप यहां पर एक लाइन लगा दें एलसीएम के लिए, कॉज अल्फा कॉज बीटा दोनों के नीचे लिखा हुआ है तो दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट। ये डिवाइड होगा पहले इस पे, तो कॉज अल्फा खत्म, कॉज बीटा बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी साइन अल्फा, तो कॉज बीटा आप लिख देंगे, प्लस लगा देंगे ये वाला। अब ये डिवाइड होगा, कॉज बीटा कॉज अल्फा बचेगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर बन जाएगा कॉज अल्फा साइन बीटा, ये लिख दिया, ये हमने ऊपर वाले का एलसीएम कर लिया। अब जो इसका डिनोमिनेटर था इसका एलसीएम करना है, इसमें भी एलसीएम में यही दो चीजें हैं, कॉज अल्फा और कॉज बीटा। इसको डिवाइड करें, इस पे कॉज बीटा बचेगा, इसे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन अल्फा कॉज बीटा बनेगा ये, माइनस कॉज बीटा कैंसिल, कॉज अल्फा मल्टीप्लाई होगा तो कॉज अल्फा साइन बीटा बन जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम भी कैंसिल हो रहा है, हर बार एलसीएम ही कैंसिल होता है आपस में, और जो बाकी बच रहा है उसको देख लें, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, किसका फॉर्मूला है ये, साइन अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला है। नीचे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये किसका है, साइन अल्फा माइनस बीटा का। यही राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था। पार्ट नंबर 5, कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। राइट हैंड साइड टेक करके कॉट को आप लिख सकते हैं कॉज ओवर साइन, दूसरे कॉट को भी आप लिखें कॉज ओवर साइन, तो ये फ्रैक्शन आप सिंगल कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड बाय कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस कॉज बीटा ओवर साइन बीटा, क्योंकि कॉट कॉज ओवर साइन होता है। एलसीएम करें न्यूमरेटर में, साइन अल्फा यहाँ बीटा आना है, साइन अल्फा साइन बीटा यहाँ पर भी बीटा आएगा, ऊपर एलसीएम किया तो कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और डिनोमिनेटर में एलसीएम करें, ये भी साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम आएगा, और ये साइन साइन सेम है तो कॉज अल्फा साइन बीटा, या फिर आप लिख लें साइन बीटा कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा साइन अल्फा, इस तरह कर लें। इनका जो एलसीएम था ये कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बच गया वो आप लिख लें, तो बाकी बच गया कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अरेंज कर लें, सेकंड टर्म को पहले लिख लें साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा, अरेंज करके टर्म्स नीचे वाली लिखी हैं। ऊपर फॉर्मूला बनता है कॉज अल्फा प्लस बीटा का और नीचे बनता है साइन अल्फा प्लस बीटा का, ये बन जाता है कॉट अल्फा प्लस बीटा, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन 7 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10.2 के, उसमें बाकी क्वेश्चंस होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।